behalf of Vivek College of Commerce, welcome the career expert and counselor for today's seminar, Ms. Richa Gupta Madam, and welcome the parents who are here, the students who have come with a lot of queries, anxiety, anticipation of what to do next and what we can offer, my dear colleagues and my dear NSS volunteers and all others who are part of this seminar. Welcome you all once again to School Connect 2.0. The very purpose of today's seminar is to give guidance, is to help you, to support you at every step that you're going to take next. As soon as we finish 12th, we have a mindset of which road to travel. Whether that road will be a smooth road, not a good road, a road with rocks, we have no idea. But we know that there is a destination where we need to reach. This opportunity is being given by us. For each one of you who are part of attending today's seminar, please inform your friends too, which will be recorded in Vivek College of Commerce YouTube channel so that they can see it later. And in case even you have missed it, you can go and re-watch today's video because every word that Madam is going to speak today will be so effective for you to take a decision in where you need to go, which path you need to take. So I welcome once again on behalf of our principal, the management and all the teachers to Vivek College of Commerce. What are we going to offer? That Madam will speak little later. But before that, I would like to just place into your records. We have 7 undergraduate programs, 2 postgraduate programs and 1 PhD program. Parents, आपको अगर लगता है कि completely English आपको नहीं समझ में आएगा, हम सेमिनार के बाद भी अवेलेबल हैं ये 4th फ्लोर के रूम्स में. आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, whichever language you are comfortable in, we are there to help you out. So आप ये नहीं सोचे बाप रे कुछ नहीं समझ में आ रहा है हमको जाना है यहाँ से. आपको यहाँ पे जो भी बताया जाएगा वो बहुत महत्वपूर्ण है और आपके बच्चों को एक डिसीजन लेने के लिए हेल्प करेगा. Before we begin with the career expert session, I would like to introduce Ms. Richa Gupta Madam to each one of you. A career expert and a counselor, and her area of interest. She has donned or has many feathers to her cap, and her role, as I could see, relationship manager, millennial expert, human skills trainer, and there are many. She has worked with n number of Fortune 500 companies as a counselor, an expert who can help students. And you know students, everybody's objective in when you write in somewhere like no to do something, to self-progress, to do something for us and to the society. Madam का एक बहुत beautiful line है which I would like to read it for you. The very first line is, help people realize their true strength. Help people realize their true strength means she's embracing all of you to ask her what to do next. The very first line in her resume says volumes about her, that she's open to help each one of you who are here, not only you, and make you realize your potential. What career can be the best for you when you are having a big question mark? And instead of me talking more about her, I would like to invite her and talk more about career choices and her expertise on the topic. We welcome you, ma'am. Very good morning. मैं warm good morning नहीं बोल रही क्योंकि already climate ही इतना warm है. So it's better to say a cool good morning to every one of you. Thank you so much. सबसे पहले तो before I begin, I just wanted to understand means of communication is very important. मैं जानना चाहूँगी कि you want me to continue in English, Hindi, Marathi I can try, but I'm not very good at it. तो अगर English या हिंदी चलता है, so please tell me, I'm open to that. It should be Hindi, English,
or a English? English, right? Everyone nowadays want English. So, all right. तो सबसे पहले तो थैंक यू. सैटरडे मॉर्निंग जब सब जने सो रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल, यहाँ पे सिर्फ 50-60 बच्चे दिख रहे हैं मुझे, प्रोबेबली बाकी सारे सो ही रहे होंगे. तो इसीलिए थैंक यू, आपने अपना सुबह का टाइम दिया मुझे यहाँ पे. एंड दैट शोज द ईगरनेस दैट यू हैव इन यू टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट योर करियर. The people who are sitting here, the parents who are sitting here, you know, compromising their working hours, is because they want to, because they care for their student, they care for their child, and the teachers, they care for their students. So I'm happy, without wasting your time, we'll go ahead and check how and what can be done. Are we all ready? So today, सबसे पहले मैं बताती हूँ what all things that we are going to cover. Number one is how, why, and when to plan a career. 7 factors that influences us to choose a career. Understanding scope and future of the careers that are upcoming every now and then. Systematic planning, career planning. What is it? The process. Stream selection and of course career options. क्योंकि हम भी से आज तक सबको कुछ careers ही पता हैं. So I'll be, हालांकि 550 career है, but I'll try to introduce as much as possible. So before I begin, of course, ma'am ने मेरा introduction दिया है, but to be clear in your minds and understand what I am and why I am here standing in front of you all. So I have done my graduation. I am a commerce graduate with MBA in finance and international business. Turned into a banker. Bank में मज़ा नहीं आया. I was not a kind of a guy जो दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठ के सिर्फ numbers देखे. So I quit my job. उसके बाद I've started realizing the gap in the job, the people, the way people search for job. So I have an experience of now 13 years into recruitment and job consultancy, where I am helping freshers, professionals, and people with working experience to get jobs. So that is one part. Other than that, I also realized a gap. ये problem job के साथ नहीं है कि people are dissatisfied. ये problem career choice के time पे है. Because people are selecting careers in which they are not interested and ultimately ending up in a job. So I took one step behind it and then started counseling so that I can, at least cater to 100 students yearly at least, जिनका career, जिनका interest और जिनका job conditions I can change for a satisfactory life. Ultimately, we all want satisfactory life at the end. So I've personally trained 1,000+ graduates and postgraduates. Personally, मतलब एक-एक करके बात की है मैंने इनसे. Not a group. And more than now 5,000 students for a workshop like this. Group counseling. So, other than that, I'm also a YouTuber which put content on YouTube. Of course, related to education, job and all. But yes, only meaningful content. And I'm also on Instagram, posting reels because ये generations of Instagram ही देखती है. So I've learned Instagram for this. So this is what I am and why I'm here. Other than that, मैं सिर्फ यहाँ आ गई हूँ ऐसा नहीं है. I've taken those certification where I am certified to take psychometric test. I am certified to do career counseling. And I'm on a mission to help, as ma'am ने भी बताया, I'm mission to help 100,000 students in my life. So soon, probably I'll reach my target. And this is a glimpse of the workshops that we have done till now. Now my question is, why career guidance is important? Why are you all here? Statistics बताता है कि सिर्फ 50,000 में से सिर्फ एक बच्चे को करियर गाइडेंस मिल रहा है. एंड यू ऑल नो वाई. यहाँ सिर्फ 100 ही बच्चे क्यों बैठे, 1000 बच्चे क्यों नहीं बैठे? आइदर दे आर नॉट इंटरेस्टेड, आइदर दे आर नॉट
aware of it इसीलिए. But you are fortunate enough to have this here in this college. हमको नीट पास करनी है, MBBS करना है, but 50% of the medical students are dropout. Understand why? It's not about NEET. It's not about 5 years of studies. It's about 50 years of job that you would be doing later on. ये 5 साल की पढ़ाई की बात नहीं है. ये आप जिंदगी भर आगे पढ़ाई खत्म होने के बाद क्या करने वाले हो, क्या जॉब करने वाले हो, ये उसकी बात है. So that is why we have these dropouts. Not only for MBBS students, we have dropouts from IITs also. हमने कई बार देखा होगा IIT का बच्चा अल्टीमेटली बिजनेस कर रहा है. बहुत देखा है, प्रोमिनेंटली देखा है, सुना भी है. So this is the reason. Students have dropped out from IITs as well. तो अगर आपका ड्रीम सिर्फ ये IIT में पढ़ना है तो it is an incomplete dream. Completed by what exactly you want to do in future. And सबसे बड़ी चीज़, हर 3 में से एक बच्चा वो कर रहा है जो उसका दोस्त कर रहा है, उसका पड़ोसी कर रहा है, या उसके रिलेटिव्स, बिल्डिंग वाले, रिश्तेदार, जो भी ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, ये सिर्फ वही कर रहा है. ये खुद अपना दिमाग नहीं लगा रहा है, ना ये किसी प्रोफेशनल एडवाइस ले रहा है करने के लिए कि मुझे क्या करना चाहिए. क्योंकि लोगों को लगता है काउंसलिंग की ज़रूरत सिर्फ पागलों को है. इट्स नॉट द ट्रूथ. काउंसलिंग की ज़रूरत इसीलिए है ताकि हम अपने ऑप्शंस ओपन कर सकें. वी आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर कमिंग. नाइदर आर रिलेटिव्स, नाइदर मेरे बिल्डिंग वाले, ना मेरे दोस्त. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग. डोंट फॉलो योर पियर्स. डोंट फॉलो फॉर दिस रीज़न. डोंट फॉलो दैम. And for this reason, just happy to announce this, that we have been recently backed by, Aman Gupta and Ritesh Agarwal to fulfill this purpose of reaching out to as many students as possible on Shark Tank. I am partner counselor for iDream Career, and we do conduct school counseling sessions, and of course we have these corporates with us now. So with iDream Career, we've been catering to these many colleges, government schools, CSR projects, private schools everywhere, all around, पूरे pan India में we are working on it hard, day and night. Just so that वो जो 50,000 में से सिर्फ एक बच्चे को मिलने वाला जो figure है, we could change it. So अब सबसे पहले बिफोर वी कैन स्टार्ट एंड डिस्कस अबाउट करियर्स, कि क्या करियर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ऑल दैट, बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्लॉक है हमारे दिमाग में जिसको हमको क्लियर आउट करना है. आई एम श्योर जब मैं आपको अगली स्लाइड बताऊंगी और उसके बारे में पूछूंगी तो 90% ऑफ यू विल अग्री टू इट. करियर मिथ जो कि है, आप सिर्फ हाथ ऊपर करना, मैं जैसे जैसे पढ़ूंगी कि किस किस को ये मिथ है, या अभी तक तो है, इसके बाद रहेगा कि नहीं देखते हैं, बट आज तक तो है. फॉलो द ट्रेडिशन. मेरी फैमिली CA है, लॉयर है, डॉक्टर है, मुझे भी वही करना पड़ेगा. है किसी को? नहीं है ऐसा कोई? डोंट, देखो यहाँ पे आपको शर्माना नहीं है, कोई आपको जज नहीं कर रहा. मैं सिर्फ समझना चाह रही हूँ और समझाना चाह रही हूँ कि ये है, आज भी है. अगर आप में से कोई नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, बट ये है ज़रूर. तो ये ट्रेडिशन जो होता है ना, फैमिली ट्रेडिशन, मेरी पूरी फैमिली में सब हॉवर्ड से पढ़ के आए हैं, मुझे भी वही करना है, ये मिथ है. ऐसा कुछ नहीं है. यू कैन डू, यू कैन चूज योर ओन वे. डिसीजंस दैट फॉलो बाय फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, मैंने ऑलरेडी बोला है. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? फ्रेंड्स एंड फॉलो, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. अभी सबके मुंह हिल रहे थे, अब कोई हाथ ऊपर नहीं कर रहा. मैं पकड़ूंगी नहीं आपको आके, मैं एक को भी नहीं पकड़ूंगी, पर हाथ तो ऊपर करो. आई वॉन्ट दिस सेशन टू बी इंटरएक्टिव, ताकि मैं समझ सकूं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. और अगर मैं बोलूँगी आप सुनोगे ना, आपको नींद आएगी थोड़ी देर के बाद. तो प्लीज़ पार्टिसिपेट एक्टिवली, ताकि मुझे भी मज़ा आए सेशन लेने में
और आपका डबल मज़ा आए पार्टिसिपेट करने में. हाउ मेनी ऑफ यू कैन पार्टिसिपेट? यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. नाउ साइंस इज डिफिकल्ट, कॉमर्स एंड आर्ट्स आर इजी. ये कितनों को लगता है? हाथ पूरा ऊपर करो यार, एक्सरसाइज ही हो जाएगी. लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, गलत फहमी है आपकी. कॉमर्स में जाके देखो, लोगों की बैंड बज रही होती है. डिपेंड करता है कि हम कौन सा स्ट्रीम के अलावा किस करियर में जा रहे हैं. ठीक है, ये इसीलिए क्योंकि साइंस के हमको डिफ़िकल्ट करियर्स पता है, एमबीबीएस और इंजीनियरिंग की. जेई इंजीनियरिंग इतना टफ नहीं है, जेई क्रैक करना ज़्यादा टफ है, नीट क्लियर करना ज़्यादा टफ है. एमबीबीएस तो हो जाएगा. वैसे ही कॉमर्स में कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होती है अनलेस एंड अनटिल इट इज़ अ वेरी रेप्यूटेड कॉलेज. इसीलिए सबको लगता है कि कॉमर्स में एडमिशन लेना ईजी है. पढ़ाई कम नहीं है भाई, कहीं नहीं है. मैंने की है, नहीं है कम. साइंस इज प्रेस्टिजियस स्ट्रीम, अदर्स आर नॉट. ये कितनों को लगता है? रेप्यूटेशन मैटर करती है. मैं साइंस में पढ़ रहा हूँ, मैंने तो नीट की तैयारी करनी है ये सब? ओनली स्कोर परसेंटेज लीड्स टू करियर. अगर मुझे 90% है तो ही मेरा करियर अच्छा है, नहीं है तो अच्छा नहीं है. मैं क्या बोलते हैं, अंधेरी काली गुफाओं में बंद होने वाला हूँ अगर मेरे मार्क्स 50 आ गए. ऐसा कितनों को लगता है? लगता है. वेरी गुड, प्लीज डोंट हेजिटेट, करो हाथ ऊपर. ये है, प्रॉब्लम है इसमें. थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग. नेक्स्ट इज आई डोंट नीड अ करियर गाइडेंस एंड करियर काउंसलिंग. कितने लोगों को लगता है मैं बहुत होशियार हूँ, मुझे सब पता है, 550-600 करियर है, मुझे सब का ज्ञान है? और नहीं है तो मैं गूगल से ढूंढ ही लूँगा. गूगल पे सर्च करने के लिए भी वर्ड लगता है कि सर्च क्या करना है. तो जब आपको मालूम ही खाली मेडिकल और एमबीबीएस है तो आप ढूंढ ही क्या लोगे? समझ रहे हो क्या डिफरेंस है? इफ़ यू चूज़ अ पाथ यू कैन नेवर चेंज इट. अगर आज मैंने साइंस चूज़ कर लिया, नीट चूज़ कर लिया, मैं नहीं चेंज कर सकता हूँ. मैंने कॉमर्स चूज़ कर लिया, मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ. इट्स अ मिथ. यू कैन ऑलवेज चेंज योर स्ट्रीम, करियर, एनीथिंग. ऑफकोर्स सब्जेक्ट वो होने चाहिए जिसमें हमको चेंज करना है. मेकिंग करियर चॉइस इज ईजी एंड इट्स जस्ट अ वन डे टास्क. एक दिन में डिसाइड होता है कि मुझे क्या करियर चूज़ करना है. एक दिन में एक काउंसलिंग सेशन लो मैडम और ख़त्म करो कि क्या करना है. जब आप 10 साल में नहीं कर पाए, मैं एक दिन में कैसे कर लूँगी? समझ रहे बात? तो वो एक दिन का टास्क नहीं, इट्स अ प्रोसेस. स्टडीज़ आर जस्ट टू कंप्लीट द डिग्री. जो मैंने आपको बोला, पढ़ाई आप सिर्फ 5-10 साल करोगे, उस पढ़ाई का यूज़ आपको आगे 50 साल तक करना है. ये सोच के उस करियर को चूज़ करो. पढ़ाई ख़त्म करने के लिए पढ़ाई नहीं है, उसको यूज़ करने के लिए हम पढ़ रहे हैं. सो ये मुझे पता है, ये आधे बच्चे वही हैं, डिग्री ख़त्म करो यार फिर देखते हैं. कितने लोग ऐसे? कर दो, 12th हो जाए फिर सोचते हैं, 10th का रिजल्ट आ जाए फिर सोचेंगे यार क्या करना है. अभी तक सोचना शुरू ही नहीं किया हमने. कब सोचोगे? जब बीकॉम ग्रेजुएशन या कुछ और हो जाएगा, या मेरे जैसे जब आप जॉब कर लोगे फिर सोचोगे कि अब छोड़ना है. डोंट डू दैट, डोंट वेस्ट योर टाइम. मैं आज से 15-20 साल पहले पढ़ी थी, चेंज हो गया है ज़माना. पीपल आर मोर अवेयर अबाउट इट. अगर आप कंपटीशन में नहीं हो तो उसके बाहर ही हो. अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, प्लीज़. मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं, आई हैव बीन गिवन लिमिटेड टाइम. आई वॉन्ट फटाफट आंसर्स. ठीक है? जब आप एक जूता खरीदने जाते हो तो व्हाट ऑल थिंग्स दैट यू थिंक अबाउट इट, कि मुझे क्या क्या देखना है जूते में. कौन आके बोलेगा, या फटाफट एक एक खड़े हो जाओ. क्या क्या देखते हो एक जूता खरीदने से पहले? क्या देखते, कोई बोलेगा? जोर से. क्वालिटी, प्राइस, साइज, कंफर्ट, कलर. और कंफर्ट हो गया, और ब्रांड. ऑफ कोर्स ब्रांड तो इंपॉर्टेंट है. और देखते हो इतनी सारी चीजें, साइज, कलर, ब्रांड,
ड्यूरेबिलिटी, पर्पस। ऐसा तो नहीं है चप्पल पहन के शादी में चले जाओगे, नहीं होता ना, या हाई हील पहन के स्विमिंग करने चले जाओगे, नहीं होता ये। पर्पस देखते हैं ना हम। भाई जब इतनी सारी चीज़ें आप एक जूता खरीदने से पहले देखते हो, तो करियर से पहले क्यों कुछ नहीं सोचते हो? जूता तो खराब हो जाएगा साल 2 साल में, करियर को तो जिंदगी भर निभाना है। लॉजिक है कि नहीं है? कितने लोगों ने अपने करियर के बारे में सोचा है अभी तक? हाथ ऊपर करो। सोचा है कुछ? उसके बारे में एनालाइज किया है, क्या क्या सोच के मुझे करियर में घुसना है? किया है? तो प्लीज क्लैप फॉर दीज स्टूडेंट्स जिन्होंने सोचा है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने आज तक नहीं सोचा है। जूता खरीदा है कभी पहले? इसके पहले जिन लोगों ने नहीं सोचा जूता खरीदा है, उसके लिए सोचा था ना? तो अब सोचो आप कहाँ खड़े हो, कहाँ खड़े हो, सोचो खाली। अच्छा हुआ यहाँ आ गए। नाउ देर आर सम फैक्टर्स विच आर इम्पॉर्टेंट बिफोर यू मेक अ करियर चॉइस। करियर सिर्फ मार्क्स पे चूज नहीं करते, सिर्फ मार्क्स पे चूज नहीं करते। मार्क्स आर इम्पॉर्टेंट, बट यू कैन नॉट डिटरमाइन योर करियर बेसिस ऑन योर स्कोर्स ओनली। आपका स्किल्स, क्या एक्सपर्टीज है, क्या इंटरेस्ट है, आपका एप्टीट्यूड मतलब मार्क्स ही होता है। देन योर वैल्यूज, जैसे मैंने आपको बोला, कोई फैमिली है जिसकी वैल्यूज है कुछ, आप उसके वैल्यूज के अगेंस्ट जाओगे तो बहुत सारा टकराव आएगा फैमिली के अंदर। सोसाइटी के अगेंस्ट जाओगे तो टकराव आएगा। सो इट्स बेटर यू रियलाइज दोज रेजिस्टेंसेस एंड देन टेक दैट करियर। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग, मैं यहाँ किसी भी रिलीजन या किसी के भी बारे में बात नहीं कर रही हूँ, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक ब्राह्मण फैमिली का बच्चा अगर होटल इंडस्ट्री में जाना चाहेगा, उसको रोज मांस मच्छी काटना होगा, तो देयर वुड बी अ रेजिस्टेंस फ्रॉम द फैमिली, देयर वुड बी अ रेजिस्टेंस फ्रॉम हिमसेल्फ। यू शुड बी आइदर रेडी कि मुझे तो करना ही है, और यू शुड थिंक ऑफ अ चेंज कि ऐसा क्या है इन द सेम इंडस्ट्री में जहाँ पे आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन माई वैल्यूज बट आई कैन स्टिल डू इट। समझ रहे हो बात को? हमारे पास में बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है दिमाग में, दुनिया में नहीं है। सो योर वैल्यूज, योर पर्सनैलिटी, जैसे मैंने बोला, आई एम नॉट द पर्सन जो दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठ के दिन भर उसमें घुसा रहे, इसीलिए मैंने वो जॉब छोड़ दिया। व्हाट डू यू थिंक ये मेरे स्कोर्स का कारण था कि मेरे पास लो स्कोर था इसलिए मैंने छोड़ दिया? नहीं, मेरी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, मुझे बात करना पसंद है। अगर मैं दिन भर बात ना करूँ तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगी, और क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे मेरे काम पे आएगा तो मैंने क्विट कर दिया मेरा जॉब। इट्स सिंपल, मुझे मज़ा नहीं आ रहा काम करने में तो मैंने छोड़ दिया। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि जब आप अपना करियर चूज़ करो तो आप ऐसा कोई करियर चूज़ करो या ऐसा कोई जॉब देखो उसमें जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। वैल्यूज पर्सनैलिटी नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी ओवर अ टाइम, योर पर्सनैलिटी कैन नॉट चेंज। योर इंटरेस्ट कैन चेंज अ लिटिल बिट but your personalities cannot change over a long period of time. Your contacts, of course, हमारे आसपास के लोग, हमारे peers हमको किस तरह से influence करते हैं, वो सारी चीज़ें matter करती है। And your location access, अभी मैं अगर गोरेगांव के बाहर पढ़ने जाना ही नहीं चाहता हूँ तो obviously I have limited options, right? तो उस option में ही मुझे determine करना है कि मेरा career क्या है। It's like that. Clear है? कोई doubt नहीं है? आगे बढ़े? Stream selection. Now tell me how many of you know about science, commerce and arts? न्यूट्रल और वोकेशनल के बारे में किसको पता है? नहीं पता है। न्यूट्रल करियर्स वो आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस के बारे में तो सबको पता है। डू आई नीड टू एक्सप्लेन इट? साइंस इज अ स्टडी ऑफ एनी नेचुरल फिनोमेना, एनिमल, प्लांट, ह्यूमन बॉडी, नदी, पहाड़, झरने, जितनी भी नेचुरल चीज़ें उनकी पढ़ाई, उनसे रिलेटेड पढ़ाई को साइंस में डाला जाता है। Commerce is a study of anything that is related to money, exchange, कहीं पे भी अगर money involved है तो it's commerce. Arts is related to human behavior. Arts is not only home science, guys, please.
इट्स नॉट होम साइंस, और वो सिर्फ लड़कियों के लिए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आर्ट्स में कोई भी चीज़, साइकोलॉजी, जो भी चीज़ आपको आपके ह्यूमन बीइंग को, उसके बिहेवियर को या उसकी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए या उसको डिटरमाइन करने के लिए करनी होती है, स्टडी ऑफ दोज कम्स अंडर आर्ट्स। न्यूट्रल करियर वो करियर है जिसमें irrespective of the stream you can still select any of the careers. So there are neutral careers, मैं आपको बताऊंगी कौन से है वो आगे चल के। बट न्यूट्रल करियर मतलब आपको वो करियर चूज करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं कौन सी स्ट्रीम से 12th तक पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ। Of course there are supporting streams, but it's not necessary. And vocational careers are those careers जो कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, थियोरी नहीं पढ़ाते आपको जैसे नॉर्मल डिग्री कोर्सेज में हम लोग करते हैं, थ्योरी 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 और फिर बाद में 2 महीने की इंटर्नशिप। दिस इज लेस ऑफ थ्योरी, मोर ऑफ प्रैक्टिकल थिंग। दीज आर शॉर्ट टर्म कोर्स करियर्स जो कि साल, 1.5 साल, 2 साल के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर डिपेंडिंग अपॉन देयर कि क्या चीज़ उसका कर रहे हैं हम। ITI हो गया, डिप्लोमा कोर्सेज हो गए, supporting. So we can always choose one professional degree course along with vocational courses open to all right after 10th also. ठीक है? So time waste मत करो, vocational courses पे ध्यान दो। Now tell me how many of you think कि scope जानना बहुत ज़रूरी है career choose करने से पहले? इसका तो scope नहीं है। कितने लोग सोचते हैं? सब सोचते हैं यार, कौन जाता है आज, कौन जाके बोलेगा कि चलो मैं कैसेट बेचता हूँ? कौन जाके करेगा बोलो मुझे? कैसेट बेचनी है किसी को? क्यों? स्कोप खत्म हो गया इसलिए ना? तो बोलो हाथ ऊपर करके कि यस वी डू कंसिडर स्कोप। जिस करियर का स्कोप नहीं है कि आप उसको चूज करोगे, नहीं करोगे, तो हाथ ऊपर क्यों नहीं कर रहे हो? पूरा करो, एक्सरसाइज हो जाएगी सुबह सुबह। यस, स्कोप हम सबको मायने रखते हैं, but we have very little understanding about this scope. Word scope, अभी से उबासी आ रही है, पार्टिसिपेट करो। यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट 21 गोल्स, सॉरी नॉट 21 गोल्स, आई एम सो सॉरी आई फॉरगॉट, 17 गोल्स, यस सॉरी 17 गोल्स है ये यूनाइटेड नेशंस के टुवर्ड सस्टेनेबिलिटी। अगर आप ये जो विजन है, ये जो मिशन है, ये कहीं ना कहीं सब कोई पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया ने अपनी एजुकेशन सिस्टम बदल दी, पॉलिसीज बदल दी, सो दैट दे कैन इंक्लूड मोर ऑफ दीज थिंग्स। अगर आप देखोगे बुक्स पे ये फिगर कई बार होता है आजकल कि वो जो भी करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं दैट इज़ ऑन द बेसिस और टू सपोर्ट दिस कॉज। इसमें ये जो गोल्स हैं, पॉवर्टी, नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, आप सबको दिख रहा है? मैं एक एक रीड नहीं कर रही हूँ, बट कैन यू सी दिस? नाउ आई एम वर्किंग टूवर्ड्स वन गोल, व्हाट इज दैट? क्वालिटी एजुकेशन, इजंट इट? सो डू यू थिंक जो गोल पूरी दुनिया देख रही है उसका कभी स्कोप खत्म हो सकता है? नो। अगर आप अपने आप को इन गोल्स के साथ असाइन कर रहे हो या इनसे रिलेटेड वर्क कर रहे हो तो फिर आपका स्कोप कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। दूसरी चीज़, अब आप बोलोगे हम क्या यहाँ पे क्या बोलते हैं, चैरिटी करने बैठे हैं क्या, कमाएंगे कैसे? तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, गोल्स को अचीव करने का मतलब चैरिटी करना नहीं होता है। मैं यहाँ हूँ, गोल है, बट ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कुछ मिलेगा नहीं मुझे। Of course you can put your cost into it, but scope is there. Now I'll explain you कि how can you consider, not with all of them but few. जिन लोगों को ये लगता है कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस से कम है या यू नो ओनली साइंस हैव द स्कोप, उनके लिए हंगर एक प्रॉब्लम है? हंगर प्रॉब्लम है? अब मुझे बताओ, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों ही बच्चे, तीनों ही स्ट्रीम के बच्चे इसको कैसे केटर कर सकते हैं? शेफ इज हु अ न्यूट्रल करियर, क्योंकि शेफ कोई भी बन सकता है, उसको चूज करने की ज़रूरत नहीं है। एग्रीकल्चरिस्ट इज ए साइंस बैकग्राउंड करियर,
जहाँ पे यू हैव टू स्टडी अबाउट प्लांट्स, ग्रोइंग ऑर्गेनिक फूड, बेटर क्वालिटी, बेटर यील्ड। पब्लिक पॉलिसीज बनाने वाला आर्ट्स का आदमी रहेगा, क्योंकि वही डिफाइन करेगा कि गवर्नमेंट पॉलिसीज के हिसाब से क्या चीज़ें करनी है। फूड टेक एंड न्यूट्रिशन, जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जो एप्स हम यूज़ करते हैं टू बाय, टू सेल, टू डू एनीथिंग फॉर दिस थिंग, आर द टेक पीपल, इंजीनियर्स, राइट। एंड न्यूट्रिशनिस्ट, न्यूट्रिशन कौन देखता है? वही वोकेशनल करियर्स हैं, बट प्रोफेशनल करियर्स भी हैं विच कम्स अंडर साइंस। आ गए सब लोग? आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, न्यूट्रल, वोकेशनल। तो देयर इज अ स्कोप फॉर एवरीवन अराउंड अस। कोई भी ऐसा नहीं है, कोई स्ट्रीम ऐसा नहीं है जिसका स्कोप नहीं है। अब बाकी की चीज़ें आप खुद भी देख सकते हो। आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल वेस्ट, बायोकेमिस्ट्री साइंस बैकग्राउंड का है, एनवायरमेंटल इंजीनियर साइंस बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, उसकी जो मशीन्स बनाएंगे उसको डिग्रेड करने के लिए वो साइंस बैकग्राउंड है। पब्लिक पॉलिसी अगेन आर्ट्स वाले हैं। एंथ्रोपोलॉजी आर्ट्स वाले हैं, ह्यूमैनिटीज। एंड सस्टेनेबिलिटी इट कम्स अंडर न्यूट्रल, हाउएवर मोर ऑफ इट इज इनटू आर्ट्स। समझ रहे हो? तो स्कोप किसी का कम नहीं है। अब कितने लोगों को ये खुशी है कि स्कोप तो कम नहीं है किसी को खुशी? थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाउ फ्यूचर, प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर। अभी हम सब समझ रहे हैं कि फ्यूचर कितने ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। कोविड से पहले जहाँ हम कैश लेके घूमते थे, आज तो हम कैश लेना ही भूल जाते हैं घर से। होता है? क्योंकि हाथ में मोबाइल तो है, जीपे भी है, पेटीएम भी है, सब कुछ तो है। पैसे की ज़रूरत ही क्या है? वॉलेट चाहिए ही क्यों? ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड भी नहीं चाहिए आजकल, तो वॉलेट ही नहीं लेके घूमता लोग। सो वाई? क्योंकि चेंज हो रहे हैं चीज़ें। अगर आप आज ये सोचोगे कि मैं कैश काउंटिंग मशीन का प्रोडक्शन करना चाहता हूँ, तो हाउ मेनी ऑफ यू थिंक देयर विल बी अ लॉन्ग टर्म करियर इन इट? लोग प्लास्टिक मनी पे जा रहे हैं, लोग ऑनलाइन मनी पे जा रहे हैं। तो ये पैसे गिनने की मशीन तो थोड़े दिन में बैंक ही बंद कर देगा मुझे लगता है, क्योंकि उधर ही लोग आना बंद कर देंगे। हो सकता है कि नहीं? आई एम जस्ट प्रेडिक्टिंग, आई एम नॉट सेइंग इट इज। सो प्रेडिक्ट करो फ्यूचर को। यू हैव थिंग्स अराउंड यू। लोग चेंज हो रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में। आज तक लोग घर घर जाके बेचते थे, आजकल तो डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है। भैया फ़ोन में ही घुस जाते हैं सीधा, होता है। सो दिस इज़ फ्यूचर। अगर आप आज भी ये सोचो कि मैं थैला उठा के चला सोसाइटीज़ में गेट टू गेट साबुन बेचने, तेल बेचने, तो इट्स नॉट वर्किंग गाइज। चेंज इट, चेंज योर पर्सपेक्टिव। करियर चेंज नहीं हुआ है, उसको करने का तरीका चेंज हुआ है। समझ रहे हो? तो कॉमर्स में, हेल्थ केयर में, ट्रांसपोर्ट में मैंने ऑलरेडी स्लाइड पे लिखा है। आई एम सो सॉरी, मेरी ना हैबिट नहीं है स्लाइड्स को देख के पढ़ने की। मुझे ये सब कुछ ऑलरेडी मेरे अंदर से आ जाता है, तो ये देखना नहीं पड़ता है। सो जिसको इंटरेस्ट है प्लीज़ उसका फ़ोटो ले लो या फिर आप पढ़ लो। ओके, नाउ ओवरव्यू। ये स्लाइड मैंने इंटेंशनली डाली है टू अंडरस्टैंड, टू मेक यू अंडरस्टैंड कि पीसीएम, कॉमर्स, मैथ्स, न्यूट्रल करियर्स के लिए ये 20-25 जो भी है करियर्स इन वन स्ट्रीम, यू कैन श्योरली लुक इनटू इट। इससे बड़ा बम मैं अभी आगे फोड़ूंगी, तो पहले ये देख लो फिर आगे दूंगी। सो यू कैन से मैथ्स विथ एनी स्ट्रीम। एनी स्ट्रीम का मतलब है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस वाला, सिर्फ मैथ्स होना ज़रूरी है इन योर 12th। तो उसमें आपके पास में देखिए कितने सारे ऑप्शंस हैं। तो जिन लोगों को ये टेंशन है ना कि भाई मेरा साइंस के अंदर एडमिशन नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं, मुझे तो ये करना नहीं है, गोल डिसाइड करो और फिर स्ट्रीम चूज़ करोगे ना तो दूसरों के लिए भी सीट्स बचेंगी। ट्रस्ट मी, जिनको सच में वो सीट्स की ज़रूरत है ना उनके लिए वो सीट्स बच जाएंगी। तो ओनली विथ मैथ्स यू कैन डू सो मैनी थिंग्स। और इसमें सिर्फ कुछ ही डाली है मैंने अभी भी। आई कैन नॉट फिट 40 मिनट्स के सेशन में पूरे 550 करियर्स के बारे में बात करना, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। देन पीसीएम के बारे में हमको सिर्फ इतना पता है कि इंजीनियरिंग लोग जो होते हैं या जिनको जेई क्रैक करना है वही लोग सिर्फ पीसीएम लेते हैं, irrespective of knowing it कि there are so many other options that can be worked out।
only with this physics, chemistry and maths as a subject. तो आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग तो है ही, मटेरियल साइंस, मर्चेंट नेवी, इंडियन फोर्स, सो मेनी थिंग्स. रीड इट आउट, टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ फोटो, वॉट एवर यू वॉन्ट. ठीक है, तो इसको रिपीट करने से मतलब नहीं है, इसमें सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होना ज़रूरी है. तो आपको अगर इनमें से किसी करियर में चूज़ करना है तो भी आप कर सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि हर एग्ज़ाम मतलब हर अगर मैथ्स लेना है तो जेई करके तो देख लेते हैं. लोगों को देखा है मैंने, इंटरेस्ट तो है नहीं पर करके तो देख लेते हैं, दे के तो देख लेते हैं. क्यों भाई, पैसे ज़्यादा हैं, ज़्यादा पैसे किसी के पास, मुझे दे दो लाके, मैं कहीं अच्छी जगह लगा दूंगी. ट्यूशन के पैसे फ्री में आते हैं? नहीं आते. तो ऐसी चीज़ें करनी क्यों जिसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है. टाइम फ्री का है आपके पास, चलो पैसे तो फिर भी माँ बाप के कमाए हैं, आपके कमाए हुए तो है नहीं, तो दर्द कहाँ से आएगा. टाइम तो आपका ही है. यू आर वेस्टिंग योर टाइम. अगर आप एक दिन भी उस चीज़ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, जो आपको नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहा हो ना, उसको एक दिन भी नहीं करना चाहिए. जो आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन दे, जो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड दे, जो आपको जोश दे करने का, उसको तो आप बिंदास करो, फ्री में भी करो. समझ गया. सो पीसीबी, एमबीबीएस सबको पता है, डेंटिस्ट्री सबको पता है, बट जो नहीं पता है वो नीचे की चीज़ें हैं, लाइक साइकेट्रिस्ट, फिजियोथेरेपी, अलाइड मेडिकल कोर्सेज. अब अलाइड मेडिकल मैं आगे बताती हूँ सब क्या है आगे, बट यू जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट. फार्माकोलॉजिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, फॉरेंसिक. तो ज़रूरी नहीं है कि पीसीबी लेने के बाद मैं सिर्फ इंसानों का ट्रीटमेंट ही करूँगा, ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है. मैंने सिर्फ डॉक्टर बनना है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. बहुत सारे करियर्स हैं जो बिना नीट के भी होते हैं. उसके लिए उस चीज़ का प्रेशर लेना ज़रूरी नहीं है बच्चों, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. प्लीज़ ये जेई का, नीट का और दूसरे एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रेशर मत लो कि नहीं हुआ, लोग जा रहे हैं 4-4 बार अटेम्प्ट दे रहे हैं, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है यार, छोड़ दो, दूसरी चीज़ें हैं. Then open to all streams is the neutral careers. Psychology is open to everyone. Anthropology, sociology, archaeology, design, political science, public policy, LLB जो law होता है वो open for all है. Business management, mass communication, arts, navy, Indian army, chartered accountancy, academic, civil, public policies, ये सब irrespective of streams है, open for all. कितने लोगों का बल्ब ऑन हुआ इधर अभी, थोड़ा सा हुआ किसी का बल्ब ऑन? प्लीज रेज योर हैंड्स यार, मुझे भी मोटिवेशन आने दो थोड़ा सा कि कुछ घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है अंदर. थैंक यू. जिन लोगों का बल्ब ऑन नहीं हुआ, या तो उसको पता है या तो ऊपर से चला गया. क्या है चीज, ऊपर से गया. व्हाट आफ्टर 10th, ये मैंने ना एक छोटा सा चार्ट बनाया है जिसमें आई ट्राइड टू अकोमोडेट एज मच एज पॉसिबल. व्हाट आफ्टर 10th, इसको थोड़ा जूम करेंगे भी हम. सो इसके अंदर सिर्फ स्ट्रीम सिलेक्शन नहीं है, इसमें वो भी है जो आप 11th-12th में कर सकते हो एज एन एडेड थिंग. कुछ प्रोजेक्ट्स में घुस जाओ, कुछ सोशल कॉज में घुस जाओ. अल्टीमेटली ये सब आपका प्रोफाइल बिल्डिंग में काम आता है. हाँ, 11th स्टैंडर्ड के बाद में ये ठीक है 12th दोगे. ये साइड में देखो, ऑल एंट्रेंस एग्जाम्स आर देयर. एआई, एम्स का, एआईटी, बिटसेट, क्लैट, ये सारे वो एंट्रेंस एग्जाम है जिसकी आप नॉर्मली तैयारी करते हो किसी ना किसी की. उसके आगे जो है वो है असलियत. टेक्नोलॉजी में व्हाट आफ्टर 10th यू कैन डू. पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज जो मैंने आपको बोला था वो 10th के बाद भी यू कैन ऑप्ट. तो नीट का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, 12th का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन स्टिल स्टार्ट इट. एक बार बोलते ना, कुछ भी डिश खाने से पहले हम चखते हैं कि नहीं उसको, ये चखना है. समझ रहे हो. ये डिप्लोमा कोर्सेज इज अ फीलिंग ऑफ गेटिंग इनटू इट, फीलिंग ऑफ गेटिंग इनटू दैट करियर. अगर नहीं पसंद आ रहा है तो डिग्री कोर्स 2 साल बाद चूज करना है, टाइम है. ITI इज़ फॉर इंजीनियरिंग, मतलब जिनका इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है. ऑफकोर्स ये कोर्सेज करने के बाद
you get 1 year, 2 year का, you know, reduction in the thing. You can directly take admission into the second year. तो अल्टीमेटली आप वहीं लैंड अप हो जाओगे. सो यू कैन ऑलवेज क्लब दिस. देन जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, जिसमें सीधा यू नो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लो और जॉब शुरू कर दो. 11th-12th में टाइम वेस्ट क्यों करना है? अगर आपके पास बहुत कुछ नहीं है पढ़ने को, यू कैन ऑलवेज स्पेंड योर टाइम इन डेवलपिंग योर सेल्फ, योर स्किल्स. सो दीज आर द कोर्सेज जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज है. ग्राफिक डिज़ाइनिंग, 3D, एयर टिकटिंग, ब्यूटी, कल्चर एंड ऑल दैट. अभी मैंने एक बच्चे से मिली मैं कल, उसने बोला कि आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, उसको स्कूटर चलाना आता है. उसने लाइसेंस नहीं बनाया कि भैया पेरेंट्स लोग काम देते हैं, भैया इस उम्र में काम नहीं करोगे तो कब करोगे? बुढ़ापे में? बुढ़ापे में काम करोगे क्या? यू शुड बी अवेलेबल. 11th-12th आपकी ऐश करने के लिए नहीं है. यू कैन स्टिल डेवलप योर स्किल्स, enjoy, बट साइमल्टेनियसली डू अदर थिंग्स एज वेल. ठीक है? तो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज ये आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग में होगा. ज़रा सोचो, जब आप बीकॉम करके, बीए करके या कोई भी डिग्री कोर्स करके अलॉन्ग विद दिस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो जॉब ओरिएंटेड कोर्स है करने बैठोगे जॉब के लिए, जॉब जो सिलेक्शन करने वाली टीम है वो किसको सिलेक्ट करेगी? आपको या एक ऐसे इंसान को जो सिर्फ बीकॉम करके बैठा है? किसको सिलेक्ट करेगी? हमें क्यों सिलेक्ट करेगी? क्योंकि हमने कुछ किया है ना अदर देन दैट. सो वो इम्पॉर्टेंट है. ठीक है? आप सोचोगे अभी से क्या कमाएं, मम्मी पापा बोल रहे हैं अभी से क्या कमाने की जरूरत है, अभी तो ऐश कर लो बच्चों. ये भी ऐश ही है. ठीक है? सो और उसके आगे भी आपने कम क्यों कर दिया? मुझे दिख नहीं रहा. व्हाट आफ्टर 12th, इसको भी जूम करो. 12th के बाद में ऑफकोर्स आप एंट्रेंस एग्जाम दे चुके होते हैं, सब कुछ हो चुका होता है. अलाइड मेडिकल कोर्सेज सबको पता है. अलाइड मेडिकल वो चीज़ें हैं जिसमें नीट नहीं लगती है, लेकिन फिर भी आप मेडिकल इंडस्ट्री में रह सकते हो. सो देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस विदाउट नीट एज वेल इन मेडिकल फील्ड. ठीक है? देन कम्स, ऊपर करो भैया. अच्छा मैं ही करती हूँ. आई कैन डू इट फ्रॉम हियर राइट? नहीं, हाँ. सो इंजीनियरिंग कोर्सेज बी. अब लोग बोलते हैं मुझे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में जाना है या तो इंजीनियर तो बनना है तो जेई तो देना ही पड़ेगा. ऐसा कुछ भी नहीं है. बी कंप्यूटर साइंस, BCA, B.Tech, इन सब का करिकुलम फॉर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग इज द सेम. माई इंटेंशन टू यू, बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, एक रास्ता बंद होता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो रास्ता बंद हो गया है. देयर इज ऑलवेज एन ऑल्टरनेटिव रूट. मैप्स जब लगाते हैं हम ऑल्टरनेटिव रूट देखते हैं कि नहीं? तो देयर इज ऑलवेज एन ऑल्टरनेटिव रूट. प्लीज लुक इनटू इट. ह्यूमैनिटी कोर्सेज है. ह्यूमैनिटीज मतलब वही आर्ट से रिलेटेड. दिख रहा है यहाँ पे? एडवर्टाइजिंग, क्रिमिनोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, फॉरेन लैंग्वेज, होम साइंस, इंटीरियर डिज़ाइन, जर्नलिज्म, ये सारे आर्ट्स के कोर्सेज हैं. सो इट्स नॉट जस्ट होम साइंस. दैन मैनेजमेंट कोर्सेज जो हम करते हैं, BBA वगैरह, दैट इज ऑल्सो देयर. कॉमर्स कोर्सेज, इसको करिए ना थोड़ा प्रॉपर्ली. बस बस बस. सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेज ये जो है ये है एविएशन वगैरह. एंड देन हियर इट्स ग्रेजुएशन जो कॉमर्स के साथ होते हैं, CMA, CS, BCom, BBA, BBM, BFM, BMS. You can look into it. So commerce में it's not just BCom. Then comes science, UG courses in science, which includes a lot of BSc courses in all the field. तो आप समझ लीजिए, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप साइमल्टेनियसली कोई BSc कोर्स करके भी वो फील्ड में जा सकते हो. इट्स अ स्पेशलाइजेशन कोर्स. BSc in probably, you know, mathematics, BSc in forensic, BSc in forestry.
अगर बीएससी आपको अगर एग्रीकल्चर में अदरवाइज सीट नहीं मिल रही है तो बीएससी के थ्रू भी मिल सकती है. इट्स लाइक दैट. सो ऑल्टरनेटिव रूट बेसिकली. एंड देन कम्स लॉ. लॉ में भी बहुत सारी फील्ड्स हैं विच यू कैन चूज. एंड द सीए. सीए के बारे में पता ही होगा सबको. नहीं पता है? पता है सबको. बहुत सारे और भी कोर्सेज हैं बट अभी मैं सबके बारे में तो ऑनेस्टली बात नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे को सब जन देखेंगे बोलेंगे आपको इतना टाइम दिया था ना उतना हो गया. तो बीबीए, एलएलबी, बीकॉम प्लस एलएलबी, बीबीएम प्लस एलएलबी. तो एलएलबी को करने के लिए एलएलबी इज़ अ न्यूट्रल करियर. उसको आप बीकॉम के साथ या किसी और के साथ में कभी भी प्लस कर सकते हैं. गेटिंग इट? सो इट्स बैक कर दीजिए नॉर्मल. हाँ. सो नाउ अभी कितने लोगों को कन्फ्यूजन और हो गया है? बोले अब तक तो दो ही चीज़ें पता थी, अब ज़्यादा पता चल गई है. दो मिनट में आपको बाद में बताऊँ. एक बार कंप्लीट करते देन Q&A में वी विल डू इट वंस अगेन. सो कितने लोगों को कन्फ्यूजन और हो गया? अब तक तो 5-6 में से चूज़ करना था, अब तो 500 में से चूज़ करना पड़ेगा. So there is always a method to it. This is the timeline. Now take the screenshot, take your photos, cameras, जो भी है. Ideally यही होना चाहिए. 10th के बाद में you should always take a test assessment जहाँ पे interest, personality और aptitude के बारे में आपको जितना खुद के बारे में नहीं पता होता है ना उतना वो टेस्ट बता देता है. तो take that test, understand it, इवेल्युएट इट. सब्जेक्ट स्ट्रीम उसके बेसिस पे चूज करो. एंट्रेंस एग्जाम के बारे में फिर पता करो. एड्रेसिंग नीड्स ऑफ एवरी स्टूडेंट्स इज टोटली डिफरेंट. मैं ये जो कॉमन में ज्ञान दे रही हूँ वो हो सकता है एक पर्टिकुलर इंसान पे ना लागू हो. वो आपको पर्सनल सेशंस में ही पता चल सकता है. एंड देन रिकॉर्ड कीपिंग कि मैंने ये किया एंड देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू. क्रिएटिंग अ करियर प्लान इज व्हाट यू नीड टू डू आफ्टर 10th. 11th में ऑफकोर्स शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन. और सिर्फ यही नहीं, अगर आप इंजीनियरिंग या किसी भी फील्ड के बारे में जानना चाहते हो, टॉक टू योर सीनियर्स, टॉक टू पीपल हु आर ऑलरेडी इनटू इट. अंडरस्टैंड कि उस जॉब में क्या करना पड़ता है ताकि जब आप अपनी डिग्री ख़त्म करके वहाँ पहुँचो तो सरप्राइज ना हो. नाउ गाइडेंस इज व्हाट आई हैव गिवन. जहाँ पे आई ओपन अप योर ऑप्शंस. काउंसलिंग इज दैट यू वुड रिक्वायर इफ यू नो ईगर टू अंडरस्टैंड एंड मोर ईगर टू नो कि मुझे ये चीज़ पे क्लैरिटी चाहिए आज अभी. आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम, एनर्जी, मनी इन एनी ट्रायल एंड एरर थिंग्स. सो काउंसलिंग इज समथिंग दैट यू वुड रिक्वायर आफ्टर इट, वेर इन पर्सनली वी कैन अंडरस्टैंड इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी और आपकी क्या एस्पिरेशंस है and accordingly we can create a path. Additional benefits is of course you will take informed career decisions in that case. Know your options in depth, their specialization and everything else. Preparing for upcoming challenges. वो बोलते हैं ना हैराम ये तो था मुझे पता ही नहीं था. वो नहीं होगा. मोए मोए मूवमेंट चला जाएगा आपकी लाइफ से. Research, reach without delays. Evaluate yourself scientifically. साइकोमेट्रिक टेस्ट इज साइंटिफिकली डिजाइंड टूल. ये कोई ऐसा टूल नहीं है जो मैंने पर्सनली किसी के लिए बनाया है. गेट पर्सनलाइज्ड करियर एनसाइक्लोपीडिया. ये जो मैंने अभी आपको स्लाइड दिखाई ये बहुत छोटा है. जो डेटा चाहिए आपको वो बहुत बड़ा है जो गूगल पे भी नहीं मिलेगा. सो दैट यू विल ऑल्सो गेट एंड नो अबाउट स्कॉलरशिप, एंट्रेंस एग्जाम, कॉलेज जिस अराउंड यू, उधर क्या एंट्रेंस लगता है, एवरीथिंग एल्स वुड बी देयर. दिस वुड बी एन एडेड एडवांटेज टू यू. सो कुछ भी ये नहीं होगा ये तो मुझे पता नहीं था. यू विल नो कि हाँ मुझे तो पता है. तब आपको एक्चुअली पता होगा कि मुझे क्या करना है. सो दिस इज हाउ वी विल डू प्लान ए. courses based on your favorite subjects and your aspirations. Second would be related to your hobby, interest, wherein we can align with it. For example, someone who is interested in creative, plus he is also interested in engineering. So something related to product designing, product development, making those tools innovative, automobile. So that would be there.
Of course, considering all other parameters, not just this. Just as an example, ठीक है? And third would be based on your aspiration. मुझे IIT ही crack करना है चाहे जो हो जाए. तो उसके लिए क्या करना है? That would be a, plan, challenge जो भी है वो will be discussed. Now I am open to questions. Please tell me whatsoever you have in questions. Questions, please. बता रहे हैं आप? By the time others also, please keep your questions ready. We have only 5 minutes for Q&A. After which, आपको फिर मुझसे personally मिलना पड़ेगा. फिर ये free session नहीं रहेगा. So better to make best out of it. हाँ, बोलिए मैम. यूजी कोर्सेज के यहाँ पे है नीचे लेस ट्रैवल पाथ, बैचलर्स इन डिज़ाइन, बैचलर्स इन मैथ. हाँ, लेस ट्रेवल पाथ. अब मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या है. बैचलर्स इन डिज़ाइन, डिज़ाइन को हम लोग हमेशा फैशन डिज़ाइनिंग और इंटीरियर डिज़ाइनिंग तक ही सीमित रख रहे हैं, जबकि डिज़ाइनिंग इज समथिंग जो हर चीज़ में लग रही है. आप अपने आसपास देखिए कितनी सारी चीज़ें जो आपको अट्रैक्ट कर रही हैं, जिसको किसी ना किसी ने तो डिज़ाइन किया होगा, भले वो एक चेयर ही क्यों ना हो. है कि नहीं है? ज़रा सोचो, ये चेयर ऐसी होती जिसमें बीच में ऐसा कुछ तो ऊपर होता. विल यू बी एबल टू सिट ऑन इट? नो, ऑफ कोर्स नॉट. समवन वुड हैव डिजाइन्ड इट टू मेक इट कंफर्टेबल टू यू, इजंट इट? तो ये वो सिर्फ डिजाइनिंग इज नॉट ओनली फैशन, इंटीरियर और ज्वेलरी डिजाइनिंग. दैट इज व्हाट लोग बहुत कम सोचते हैं. आपका फुटवेयर, आपका आई कार्ड, आपके जूते, आपका बेल्ट, आपकी क्लिप्स, एसेसरीज, हैंड बैग्स, एवरीथिंग इज डिजाइंड. And we have professionals for everything. ओके मैम, थैंक यू. So that is what? कहाँ गया? Bachelors in Stats, social work, bachelor. ये लेस पाथ है, ये डिजाइनिंग के पास हो गए. Bachelors in Maths, मैथ्स को सब जने सिर्फ स्ट्रीम्स के साथ करते हैं, जबकि Bachelors in Maths itself give you a lot of lucrative opportunities. जो मैंने बताया था, careers with only maths as a subject if you choose. So someone who's not good at physics, chemistry, but good at maths can obviously opt for those careers, right? फिजिक्स केमिस्ट्री का भी बर्डन क्यों लेना है? आता नहीं है तो नहीं आता है, वो स्कोर तो डाउन करता है ना आपका. तो आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि एवरेज चीज़ को बेटर नहीं करना है, स्ट्रेंथ्स के ऊपर काम करके उसमें एक्सेल करना इज द इंटेंशन. वीकनेसेस पे काम करो टू द एक्सटेंट कि वो हमको सर्वाइव करने दे. बट इट शुड नॉट बी लाइक मैथ्स तेरा अच्छा नहीं है, इस पर फोकस कर. 4 मार्क मिल रहे हैं, 7 मार्क ला. 7 मार्क ला के क्या कर लेगा वो? उससे बेटर ये नहीं है कि इंग्लिश में अगर 8 आ रहे तो उसको 10 ले आ. He'll be topper in English, isn't it? So that is the perspective. So BA Maths, Bachelors in Social Work, किसी को सोशल वर्क करना है तो उसके ऊपर बाकी चीज़ों का बर्डन क्यों डालना है? Let him do what he want. पैसा तो सभी में है, सब में है पैसे, सब में कमाओगे आप, सब में करियर बना लोगे. ओनली थिंग इज कि यू नीड टू हैव दैट पाथ इन योर माइंड. ये जॉब, ये कंपनी मुझको हायर करती है, ये प्रोफाइल लगती है, ये एबिलिटीज़ मुझे डेवलप कर रही है. दैट्स इट, यू आर डन. हम पढ़ाई कर क्यों रहे हैं? कमाने के लिए. कौन है यहाँ जो पढ़ाई कर रहे हैं जिसको जॉब नहीं चाहिए? है कोई? अल्टीमेटली कमाना है, और पेरेंट्स को भी वही चाहिए, भाई तू कमा ले बस अच्छे से, बाकी कुछ भी कर. सो दैट इज इट. Bachelors in PhD, bachelors in fine arts, whatever it is, these are less, focused areas. Designing के courses IIT में भी होते हैं वैसे, जिनको JEE का score इतना matter नहीं करते. Ma'am, I think you have given such a nice answer कि to strengthen our strengths and to weaken our weaknesses. Such a nice answer she has given, and I think they need one-to-one discussion. ऐसा मुझे लग रहा है. Cannot be discussed. हाँ, तो हम क्या करते हैं कि हम क्वेश्चन आंसर्स एक थोड़े टाइम के लिए बाजू में रखते हैं. ऑफ कोर्स आपके जो भी डाउट्स है मैडम विल क्लियर. आवर प्रिंसिपल मैडम इज हियर, आवर फैकल्टी इज हियर, सो वी विल टेक अप ऑल योर आंसर्स वन बाय वन. बट आई थिंक विल जस्ट गो अहेड विद आवर नेक्स्ट प्रोग्राम एंड देन वी विल गेट बैक टू क्वेश्चन आंसर्स. ओके Maria, प्लीज गो अहेड. या ऑफ कोर्स. थैंक यू सो मच. अगर यहाँ पे मैं 1% भी चेंज ला पाई हूँ तो माई वर्क इज डन. Yeah, Just definitely. 1% in your thoughts. That's it. That is what I want.
Thank you, Richa ma'am. And on behalf of all of them, their thundering applause says it all that they have understood at least some things. May not be, the time is a very constructive, right? So I request our principal madam to felicitate you with a sapling. And as the sapling says, it is just budding. We have the budding young youth in front of us, and definitely they will bloom into a beautiful tree by listening to your expert talk and guidance. I also request our principal madam to felicitate Dr. Narayan sir, who was instrumental in bringing Richa Gupta madam to us. And that too, let me mention it, she is giving it as a free service for all of us. Thank you so much, sir. A very good morning, everybody. सबको मेरा नमस्कार. With regards to Dr. Narayan, इनका अक्षय शक्ति है, वो CEO है अक्षय शक्ति का, एंड हमारे जो कॉलेज में एक्टिविटीज़ होती है वो इनके बदौलत होता है. बहुत सारे एक्टिविटीज़, जो भी आप वॉलंटियर्स देखते हैं वो आपके जैसे ऐसे बैठे थे, आज वो कहाँ के कहाँ पहुँच गए. तो थैंक्स टू नारायण. सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ, ये भी हमारे आपके जैसे ऐसे ही हमारे कॉलेज के स्टूडेंट थे, आज हमारे वेरी प्राउड एलुमनाई हैं. थैंक यू नारायण फॉर डूइंग दिस फॉर अस. गॉड ब्लेस. And may I now request our principal madam, Dr. Vijayata Shetty, to speak about NEP, National Education Policy. So, welcome my dear students and their parents. मैं हिंदी में और इंग्लिश में बात करूँगी. सबसे पहला फीडबैक लेना चाहती हूँ. Do you think this session was helpful to you? I'm very happy. That was the objective, that students should be benefited. Because what happens is, बहुत सारे टाइम पे हम ये देखते हैं कि बच्चा तो जो फ्रेंड लेता है वो करियर हम लोग चूज़ करते हैं, कन्वीनियंस के लिए चूज़ करते हैं, साथ में जाएंगे साथ में आएंगे. तो वो ऐसा नहीं होता है. 10 साल के बाद आप जब रिफ्लेक्ट करते हो तब पता चल जाता है मैंने क्या ब्लेंडर किया है. ऐसा गलती नहीं करना. हम ये इंस्टीट्यूशंस जो चलाते हो 30-35 ईयर्स 40 ईयर्स का इंस्टीट्यूशन है, और जो हमारा स्कूल है विवेक एजुकेशन सोसाइटी 1961 बॉर्न है. शायद आपके पेरेंट्स भी 1961 बॉर्न नहीं है. तो उस टाइम से हमारा ये एक्सपीरियंस है. तो हम ये चाहते हैं कि बच्चा जो है 12th स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के पहले एटलीस्ट एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकेंगे. इसलिए ये हमने ऑर्गेनाइज किया आप सबके लिए, ताकि आप गलत डिसीजन नहीं ले. फ्रेंड्स जा रहे ऐसा डिसीजंस नहीं है. ये आपका करियर है, और वो जो पाथ में एक ही जन चल सकता है, एंड दैट इज अप, और कोई नहीं. सो टेक योर डिसीजन वाइजली, फैंसीफुल नहीं, वाइजली. इसलिए हम यहाँ खड़े हैं. आई होप ये सेशन अच्छा था. अब आगे का स्टोरी. एक बार करियर डिसाइड किया तो क्या होता है, इस साल दिस ईयर ऑनवर्ड्स ये आपके लिए होगा. ये जो फर्स्ट ईयर के जो बच्चे आएंगे कोई भी कॉलेज में, अक्रॉस यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, कितनी कॉलेजेस है, 800+ कॉलेजेस है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में. सब कॉलेजेस में NEP 2020 इम्प्लीमेंट होगा. हमारे कॉलेज में भी डेफिनेटली होगा. वी आर ऑल प्रिपेयर्ड, वी आर ऑल गेयर्ड अप. ये है क्या NEP 2020, इसलिए मैं खड़ी हूँ. आपको ये क्लैरिटी हम देंगे यहाँ. सो व्हाट इज NEP 2020? मैं बीच बीच में क्वेश्चंस पूछूंगी. अल्टीमेटली आई एम ए प्रिंसिपल बट आई एम ऑल्सो अ टीचर, तो बीच बीच में क्वेश्चंस पूछूंगी. ठीक है? ऑल सेट? ओके. दिस ईयर ऑनवर्ड्स यू हैव NEP 2020. क्या है? इट इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी
2020 है क्या ये? आई विल बी टॉकिंग टू यू अबाउट NEP 2020, क्या होगा नेक्स्ट ईयर ये एकेडमिक ईयर से, और थोड़ा सा हमारे कॉलेज के बारे में, एंड आई विल टेल यू अबाउट द प्रोग्राम वेरी क्विकली, आई विल डू इट, ठीक है? तो ये ऑब्जेक्टिव क्या है? लास्ट ईयर के जो FI के बच्चे हैं और इस साल के FI के बच्चे में क्या एजुकेशन में फ़र्क आएगा? ये फ़र्क आएगा, पूरा जो सब्जेक्ट और स्ट्रक्चर जो है जो हम पढ़ते हैं वो पूरा चेंज होगा इस साल के बाद अक्रॉस कॉलेजेस। तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली क्या होगा। तो व्हाट इट इज, फोकस क्या है? फोकस इज होलिस्टिक एजुकेशन। उसका मतलब क्या होता है? ओवरऑल एजुकेशन। ऐसा नहीं कि मैंने कॉमर्स लिया है तो कॉमर्स ही पढ़ेंगे, साइंस लिया है तो मुझे साइंस ही करना है, आर्ट्स लिया है तो आर्ट्स ही करेंगे। नो, होलिस्टिक, सबको पता होना चाहिए क्या है, थोड़ा थोड़ा सब सब्जेक्ट्स का। फोकस ऑन वोकेशनल एजुकेशन, इंटीग्रेशन, ये सब पॉइंट्स है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बताती हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। अगले साल के बाद जब आपका रिजल्ट्स डिक्लेयर होगा, सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी की साइट में जाना है। 11th स्टैंडर्ड के एडमिशन में आपको एक ही साइट में फॉर्म भरा है आपने, लेकिन डिग्री में जब आप आते हो तो आपको दो जगह पर फॉर्म भरना है। एक तो यूनिवर्सिटी साइट में भी भरना है और कॉलेज के भी साइट में भरना है। आप ये क्लैरिटी ले लो, बिकॉज बहुत सारे हमारे बच्चे आते हैं 11th स्टैंडर्ड में मैडम एक ही फॉर्म भरा था तो हमने फॉर्म नहीं भरा कॉलेज का, तो बहुत सारे बच्चे को एडमिशन्स नहीं मिलता है। तो ये टाइम क्या करना है, याद रखना है कि 12th स्टैंडर्ड के बाद जब रिजल्ट्स आएगा तो दो फॉर्म भरना है, एक यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना है और सेकेंड कॉलेज में जाके कॉलेज का भी ऑनलाइन फॉर्म वेबसाइट में भरना है। ठीक है, क्लियर? अब ये NEP है क्या? यहाँ अगले साल के बाद क्या होगा, आपका कितना डिग्री प्रोग्राम होता है, कितने साल का? 3 साल का डिग्री प्रोग्राम होता है। अगले साल 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा। बट क्या डिफरेंट है, क्या है उसमें? अब अभी हमने बहुत सारे बच्चे को देखा है 12th स्टैंडर्ड के बाद 1 साल करते हैं FI, फिर छोड़ देते हैं, SY करते छोड़ देते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में मैंने देखा है। और फिर उनका डिग्री क्या होता है, सिर्फ 12th स्टैंडर्ड पास और कुछ नहीं। आपने FI किया, SY किया, लेकिन आपको कुछ उसमें डिग्री नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज जस्ट 12th स्टैंडर्ड पास। तो गवर्नमेंट हैज कम आउट विद अ वेरी नाइस पॉलिसी दैट इज 2020। इसमें क्या होगा ये मैं आपको समझा रही हूँ। आपने फर्स्ट ईयर किया, फर्स्ट ईयर के बाद आपको आपको ड्रॉप लेना है, कोई भी कारण में आपको ड्रॉप लेना है, प्रॉब्लम्स है, नहीं कंटिन्यू कर पा रहे, कोई बात नहीं, आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा आपको सर्टिफिकेट प्रोग्राम मिलेगा 1 साल के बाद। 1 साल किया, FI किया, ड्रॉप लिया, लेकिन 4 क्रेडिट करना है, वो एक छोटा सा 4 क्रेडिट करना है, 4 क्रेडिट्स फ्रॉम द NSQF, वो हम डिटेल में समझाएंगे आपको। और आप सर्टिफिकेट इन कॉमर्स, सर्टिफिकेट इन साइंस, सर्टिफिकेट इन आर्ट्स, जो भी प्रोग्राम है वो आप ले सकते हैं। सेकेंड ईयर के बाद आपने ड्रॉप लिया, कोई बात नहीं, ओके, आपको क्या मिलेगा? आपको डिप्लोमा प्रोग्राम मिलेगा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। थर्ड ईयर आपने कंप्लीट किया है, आपको क्या मिलेगा? डिग्री। जो डिग्री कंप्लीट करते हो उनको ये नहीं मिलेगा सर्टिफिकेट इन डिप्लोमा, इट इज ओनली फॉर पीपल दोज हु लीव इन बिटवीन। ये क्यों किया है? ताकि बहुत सारे बच्चे हैं जो अनफॉर्चुनेटली वो कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो उनके लिए क्या है कि ठीक है आप सर्टिफिकेट ले लो और 7 साल के पहले वापस आ जाओ सिस्टम में और आप कंटिन्यू करो। ओके, ये तो उन बच्चों के लिए है जो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। तो जो भी आपके फ्रेंड्स है वो सोच रहे कि चलो अभी 12th स्टैंडर्ड के बाद हमको पढ़ाई छोड़ना है, टेल देम डोंट डू इट, कम टू कॉलेज। कॉलेज में तो आओ क्योंकि आपके पास ऑप्शंस है। कैन यू डू दैट फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु फील कि 12th स्टैंडर्ड के बाद पढ़ाई छोड़ना है? मत कीजिए, कंटिन्यू, बिकॉज यहाँ आपके पास ये ऑप्शंस है। 1 साल के बाद क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट। 2 साल के बाद क्या मिलेगा? डिप्लोमा प्रोग्राम। 3 साल के बाद क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट। 4 साल करते हो तो डिग्री हो गया, लेकिन अभी 4 साल क्या है? दैट 4th ईयर में आपको BCom या BSc या BSc IT या BA इन
ऑनर्स, 2 चीज़ है। 4 साल करते हो, कंप्लीट करते हो, आपको क्या मिलेगा? डिग्री इन ऑनर्स, डिग्री। जैसे बीकॉम करते हो तो बीकॉम ऑनर्स मिलेगा, दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। बीकॉम रिसर्च, देयर इज 2 ऑप्शन, सो यू कैन टेक बीकॉम ऑनर्स और यू कैन टेक बीकॉम डिग्री। उसके बाद क्या करना है? 1 ईयर ऑफ पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन, और उसके बाद में डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। सो दिस इज द न्यू फॉर्मेट विच इज कम नाउ। Okay, so you have the certificate, you have the diploma, you have the degree, you have the honors, and then 4 years. 4 years complete करते हैं तो आपको honors मिलता है वो degree में, and then you have something known as PG degree and PhD degree. That means you become a doctorate. Okay, now ये जो है आपको 12th standard के टाइम जब आप भरेंगे ना तो आपको ये सब पता होना चाहिए। ये हम आपको भेज देते हैं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ, हमेशा याद रखना, नेक्स्ट ईयर आपको 6 वर्टिकल्स होगा, 6 वर्टिकल्स। ओके, ये जो है वो 6 वर्टिकल्स है। ओपन इलेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? मैं कॉमर्स पढ़ रही हूँ, मुझे दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, मुझे आईटी करना है, मुझे बहुत इंटरेस्ट है आईटी में, कोई बात नहीं, आप आईटी चूज कर सकते हो। एक मुझे म्यूज़िक करना है, मैडम मुझे म्यूज़िक में, कल्चरल में, एनएसएस में, एनसीसी में मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोई बात नहीं। पहले क्या होता था, ओके एक्टिविटी कर रहे हैं लेकिन कुछ उसका क्रेडिट नहीं मिलता था। इस टाइम क्या होगा कि हर बच्चा न केवल पढ़ेगा बट एक्टिविटीज़ भी करेगा, और वो जो एक्टिविटीज़ के लिए उसको क्रेडिट भी मिलेगा, उसको मार्क्स मिलेगा। मार्क्स का मतलब इधर क्रेडिट होता है, आप समझ रहे, ये चेंज है। तो जो बच्चा है वो ओवरऑल उसका पर्सनालिटी डेवलप होगा, दैट इज एनईपी। जो बच्चा एक्टिविटी भी करेगा, पढ़ाई भी करेगा, रिसर्च भी करेगा, ये जो स्कोप है वो पहले नहीं था, वो कोई कोई बच्चे कर रहे थे। यहाँ क्या होगा, हर बच्चा जो क्लास में बैठेगा वो ये सब एक्टिविटीज़ के लिए, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। आप समझ रहे, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि एनईपी 20, एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि एनईपी 2020 में क्या है नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ये पहले बार हमारे यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट होगा अक्रॉस कॉलेजेस, तो थोड़ा तो पता होना चाहिए नेक्स्ट ईयर क्या है। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा स्कोप है बच्चे के लिए। ये जो 6 क्रेडिट जो मैंने बताया था, ये जो 6 वर्टिकल्स बताया था, दीज आर द 6 वर्टिकल्स। तो हर एक वर्टिकल में आप पढ़ेंगे, मेजर में, माइनर में, ओपन इलेक्टिव्स, ये सब 6 वर्टिकल्स जो है, 6 अलग अलग वर्टिकल्स है, और वो जो कॉलम्स है उसमें सब सब्जेक्ट्स होगा। और आपको डोंट वरी, हम आपको बताएंगे कि क्या क्या है, बट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आपको ये दिख रहा है यहाँ, ये इंडियन नॉलेज सिस्टम है, पहले बार इम्प्लीमेंट होगा। जो हमने देखा है कि हमारे बच्चे जो है ना, डिग्री तो करते हैं, कितने सारे बच्चे को मैंने देखा है, बहुत सारा डिग्री, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज आता है। ओके, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, लेकिन एक ही चीज़ में उनका बहुत प्रॉब्लम होता था, एंड दैट इज़ दे डोंट हैव वैल्यूज़। हमारा जो है वो वैल्यू सिस्टम में प्रॉब्लम है, हमने जो किया है वो एथिक्स में प्रॉब्लम है। तो ये जो एनईपी होगा वो न केवल डिग्री भी देगा, लेकिन वैल्यूज़ जो है और जो इंडियन कल्चर जो है वो भी आपको सिखाएगा। वो है एनईपी 2020। थोड़ा सा हमारे कॉलेज के बारे में। विवेक एजुकेशन सोसाइटी 1961 में इस्टेब्लिश हुआ था, ऐसा था पहला इंस्टीट्यूशन। अब क्या है, अब हमारे पास केजी टू पीजी, केजी टू यूजी, टू पीजी, टू पीएचडी। एक बार बच्चा आता है, 4 इयर्स का बच्चा, बहुत सारे है, बैठे भी है मेरे सामने, जो केजी में एडमिशन लिया था, अब वो मेरे साथ प्रोफेसर्स भी है, अब वो मेरे साथ है, जो एडमिन भी है, जो मेरे साथ टीचर्स भी है, और जो पीएचडी भी कर रहे हैं। तो एक इंस्टीट्यूशन में पूरा करियर बना दिया, और फैंटास्टिक पीपल। सो दिस इज़ व्हाट विवेक एजुकेशन सोसाइटी गिव्स यू। हमारे पास स्कूल भी है, बहुत सारे बच्चे हमारे 11th-12th स्टैंडर्ड के भी बच्चे हैं, जूनियर कॉलेज के हैं, और ये हमारा डिग्री कॉलेज है जहाँ यूजी भी है, पीजी भी है, और उसके बाद में पीएचडी भी है, यही इंस्टीट्यूट में। पहले हमारे पास कितने बच्चे थे?
1961 में 200 बच्चे थे ओवरऑल, अब कम से कम 7,000 बच्चे हमारे पास एवरी ईयर पढ़ते हैं। दैट्स विवेक इंस्टीट्यूशन। अब ये विवेक कॉलेज ऑफ कॉमर्स क्या है? वेरी क्विकली, हमने एस्टैब्लिश किया था 1986, वेरी ओल्ड कॉलेज वी आर। क्या करते हैं हम? बहुत सारा कोर्सेज है, मैं बताऊंगी। 11 कोर्सेज है हमारे, प्रोग्राम्स है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर हमको ISO 21001, ये क्या है? क्वालिटी सर्टिफिकेशन है। ISO 9000 बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के पास है, लेकिन हमारे पास क्या है? ISO 21001। दिस इज बेसिकली फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ये जो TUE ऑस्ट्रिया है, बहुत टफ होता है उनका प्रोसेस, तो लास्ट ईयर हमको जुलाई में ये सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। दैट मीन्स हमारा प्रोसेस इज क्वाइट रिजिड एंड स्ट्रिंजेंट। दैट इज हमारा जो क्वालिटी एजुकेशन का वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है। वी आर recognized by UGC under 12B 2F, permanently affiliated to University of Mumbai. University of Mumbai क्या है? A++ grade institution university है, and we are a part of University of Mumbai, and we are very proud to be a part of University of Mumbai, highly recognized in the global scenario. We have got, as a college, we have got several MOUs. हमने बहुत सारा MOUs sign किया है. One of the prominent MOU is with IIT Mumbai. Very recently, January में हमको एक बहुत अच्छा स्टेटस मिला है, that is autonomous status. ये autonomous status है क्या? ये 800 colleges में से only 10% of the colleges are autonomous. We are one of them. Autonomous का मतलब क्या होता है? हमारे पास एकेडमिक फ्रीडम है, हम खुद का सिलेबस डिज़ाइन करते हैं एज पर द डिमांड फ्रॉम द मार्केट, ताकि बच्चे जो ग्रेजुएट हो उनका एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी कि हम डिज़ाइन करते हैं अपना सिलेबस। नॉट ओनली दिस, अगर हमको ऐसा लगा कि चलो नया प्रोग्राम करना है, मार्केट में 10 साल के बाद 20 साल के बाद बहुत स्कोप है। आज हम देखते हैं AI, चैट GPT, ये जो है वो खाली IT रिलेटेड नहीं है, कॉमर्स रिलेटेड भी है। मैं आपको एक स्लाइड भी बताऊंगी कि क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो इनोवेटिव प्रोग्राम्स है उसका हमको फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, सिर्फ हम कर सकते हैं एज एन ऑटोनमस कॉलेज। न्यू सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स तो हमको करना ही है, बिकॉज जैसे मैडम ने बताया कि सिर्फ प्रोग्राम से कुछ नहीं होता है, डिग्री से कुछ नहीं होता है, सर्टिफिकेट कोर्सेज करना ही पड़ेगा। और लास्ट बहुत हम सब एग्जाम्स हमारे कॉलेज में ही होगा। इवन जो फाइनल ईयर का एग्जाम्स होता है, वो यूनिवर्सिटी का एग्जाम जो होता है वो हमारे कॉलेज ही कंडक्ट करेंगे, बिकॉज यूनिवर्सिटी और यूजीसी ने हमको फ्रीडम दिया है कि यू कैन कंडक्ट द ऑल एग्जाम्स इन योर कॉलेज। असेसमेंट भी कॉलेज में होगा, मार्कशीट भी कॉलेज ही देगा, लेकिन डिग्री कौन देगा? डिग्री विल बी गिवन बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। तो यूनिवर्सिटी का मुंबई, वी आर अफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, लेकिन हमको फ्रीडम दिया गया है। ये हमारा प्रोग्राम्स है। आप ह्यूमैनिटीज़ लो, दैट इज़ आर्ट्स, आप साइंस लो, MSc IT, BSc IT, आप कॉमर्स लो, कॉमर्स में तो इतने सारे स्पेशलाइजेशन आया है, इंक्लूडिंग बीकॉम विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, आपके पास ऑप्शंस है, आप बीकॉम कर सकते हो, प्लेन बीकॉम कर सकते हो, बीकॉम इन मैनेजमेंट स्टडीज़। हमने ये टाइम इंट्रोड्यूस किया ये, देर इज नो CET रिक्वायर्ड, कोई ज़रूरत नहीं है CET स्कोर्स के लिए, ये प्रोग्राम के लिए। बीकॉम इन मैनेजमेंट स्टडीज़ जो हमने इंट्रोड्यूस किया है, नो CET इज रिक्वायर्ड, ओनली ऑन 12th स्टैंडर्ड मेरिट। इज इट वेरी क्लियर? सो डोंट वरी अबाउट दैट, वी आर टेकिंग केयर ऑफ द मैनेजमेंट प्रोग्राम्स and by introducing this. So next year से you can apply for BCom in management studies. Banking and insurance, मुझे बैंकिंग में करियर करना है, कोई बात नहीं, BCom in banking and insurance है। मुझे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में बहुत इंटरेस्ट है, कोई बात नहीं, BCom in financial markets है आपके पास। Is it clear? So this is the entire, आपके पास, आपको अकाउंट्स में बहुत इंटरेस्ट है, फाइनेंस में बहुत इंटरेस्ट है, तो हमारे पास BCom in अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, जो BAF है, जो पॉपुलर, ये तो सब शॉर्ट फॉर्म्स है, ये फुल फॉर्म है। मुझे मास मीडिया बहुत पसंद है, तो आपके पास बैचलर ऑफ आर्ट्स इन मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन है। IT मैडम मुझे बहुत पसंद है,
कोई बात नहीं, आपने कॉमर्स लिया है लेकिन आपके पास मैथ है, मैथ्स लिया है 12th स्टैंडर्ड में, फिर भी आप आईटी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर मैं साइंस है, मैडम साइंस लिया था 12th स्टैंडर्ड में, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कॉमर्स में, कोई बात नहीं, आपने साइंस लिया है 12th तक, आप कॉमर्स में आ सकते हो। आपने साइंस लिया है 12th में, आपको आर्ट्स करना है, कोई बात नहीं, आप आर्ट्स कर सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऐसा स्कोप है यहाँ। ओके ये थोड़ा सा व्हाट वी डू इन द कॉलेज, ये हमारा एक्सटेंशन एक्टिविटी है। तो क्या करते हैं हमारे कॉलेज में? हमारे कॉलेज काफ़ी वाइब्रेंट है, बहुत सारा एक्टिविटीज़ है, ये हमारे एनएसएस है। तो हम क्या करते हैं, बच्चे को सेंसिटाइज करते हैं कि कैसे जाके हेल्प करें, क्योंकि सिर्फ डिग्री से नहीं चलेगा। मैंने बताया कि ओवरऑल डेवलपमेंट, जो हमारा बच्चा डिग्री लेकर आगे जाता है, वो एक हमारा टैग होता है, विवियन का टैग, वो टैग लेके जाता है। तो हमको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो बच्चा आगे जाएगा वो बेस्ट बच्चा होगा। एवरी चाइल्ड शुड बी वन ऑफ द बेस्ट चाइल्ड, दैट इज आवर विजन। ये एनएसएस है। लेट मी टेल यू, हमारे पास ई सेल है। ई सेल का मतलब क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप सेल। आजकल ये बहुत है कि अपना खुद का स्टार्टअप हो, तो हम बच्चे को ट्रेन करते हैं। और हम महाराष्ट्र स्टेट में फर्स्ट कॉलेज है जो इंक्यूबेशन सेंटर, हमको रिकग्निशन मिला है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से। और हमारे पास आईआईटी के साथ, आईआईटी मुंबई के साथ हमारा टाई अप है हमारे कॉलेज में। आगे बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये हमारे जो बच्चे हैं अभी जनवरी में, वो कहाँ बैठे हैं? आईआईटी मुंबई में। 900 कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया था नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज में। उसमें से टॉप 10 सिर्फ एक ही कॉलेज है जो नॉन इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, वो है विवेक कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ये देखो मेरे बच्चे, आधा तो बच्चे आप शायद खड़े होंगे, यही बच्चे इधर किधर तो भी है, आप देख पाएंगे। ओके ये है कल की बात है। नारायण सर को आपने देखा होगा अभी, ये तो कल की बात है। आपको पता है मेरे कॉमर्स के बच्चे ने कल सैटेलाइट लॉन्चर बनाया और उनको नेहरू सेंटर, ये देखिए नेहरू सेंटर, ये कल की बात है, शायद आज पेपर में कवर अप भी किया होगा। नेहरू सेंटर में ये मेरे बच्चे हैं जो वेकेशन, सम ऑफ देम आर हियर, दीज आर माय बच्चाज हियर। तो उन्होंने, कॉमर्स के बच्चे हैं, उन्होंने सैटेलाइट लॉन्चर्स जो है ट्रेनिंग लिया और वो बना रहे। और टॉप साइंटिस्ट, जो टॉप साइंटिस्ट है इंडियन के, वो थे आज कल नेहरू साइंस सेंटर में और उन्होंने बनाया। अरे ये बच्चा तो इधर ही, कम यहाँ, ये देखो ये बच्चा तो इधर ही है, देयर योर फोटोग्राफ इज राइट। सो ही इज देयर, come come on, it's a very big thing, I think we should clap for them, come on बच्चे। क्या बात है, क्या बनाया था कल? सैटेलाइट लॉन्चर। सो दीज आर द, ऐसा नहीं है कि मुझे साइंटिस्ट ही बनना है। बहुत सारे बच्चे लोगों को यही तो है एनईपी, कि बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं नहीं मैं साइंटिस्ट ही बनना है तभी मैं सैटेलाइट लॉन्चर या ऐसे कुछ कर सकता हूँ या स्काई गेजिंग कर सकता हूँ। मुझे स्टार्स में बहुत इंटरेस्ट है, स्पेस में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन मैं तो कॉमर्स में आ गया हूँ, मैं साइंस में आ गया हूँ या मैं आर्ट्स कर रहा हूँ। कोई बात नहीं बच्चे, आपके पास स्कोप है। डू समथिंग विच यू लाइक, डू समथिंग विच यू लाइक, ये इंपॉर्टेंट है। थैंक्स अ लॉट, फैंटास्टिक। आ जाओ विनीत। ये हमारा बच्चा है जो आईआईटी मुंबई में प्रेजेंट किया था। कहाँ है? हाँ ये यहाँ, दिस इज द बॉय विनीत। ये जब ही आया था वो आपके जैसे ही शाय बैठा था। अब वो, ये हमारा पिलर्स है कॉलेज के, बहुत सारे हैं। अभी तो थोड़ा वेकेशन है तो थोड़ा बच्चे नहीं है, लेकिन विनीत के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम आईआईटी मुंबई में गए थे ये नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज के लिए, तो केरला मैंगलोर यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज को विनीत ने मेंटर किया था। तो वो बच्चे ने रिकॉग्नाइज किया, विनीत को पता भी नहीं था कि वो बच्चे हैं, तो वो बच्चे फाइनल्स में आ गए थे। हमारा एडवांस कैटेगरी था, उनका बेसिक कैटेगरी था, तो वो बच्चे फाइनल्स में आए और विनीत को उन्होंने अप्रिसिएशन किया कि क्योंकि विनीत ने उनको मेंटरिंग किया था। तो ये सब चीज़ हुआ आईआईटी मुंबई में। सो थैंक्स अ लॉट, यू आर अ ग्रेट सपोर्टर फॉर द कॉलेज, यू आर रियली अ लीडर। तो ये हम करते हैं विवेक कॉलेज में। थैंक यू बच्चे। नॉट ओनली दिस, वी गिव अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इनोवेशन। एक हमारा बच्चा था जो इसने ड्रोन बनाया था,
तो उसको बहुत इंटरेस्ट था, तो उसने क्या किया, हमने उसको एनकरेज किया, ठीक है बच्चा आपको ड्रोन बनाना है, ठीक है। तो उसने बहुत, देखो खुद को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, दिस इज नॉट अ स्कूल, बट ये ऑप्शंस है, ये अपॉर्चुनिटी है कि हम ये देते हैं कि हमारे बच्चे के लिए क्या है कि अगर आप एक एरिया में अच्छा हो तो हम उनको एनकरेज करते हैं। ये एक बच्चा है जिसने ये सब बनाया, टेक हेलमेट बनाया, ड्रोन बनाया, स्मार्ट सोलार ग्रास कटर बनाए, हियरिंग एड बनाया, तो ये बच्चा कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ इनोवेशन करता है, आईटी का बच्चा है। नॉट ओनली दिस, हम रिसर्च में भी बहुत अच्छे हैं। कौन सा रिसर्च है? ये स्टूडेंट्स रिसर्च है। जो एकेडमिक्स में बहुत अच्छे हैं उनको हम लोग गाइड करते हैं, चलो लेट्स डू रिसर्च। तो हमारे जो बच्चे हैं वो आविष्कार करके बहुत बहुत बड़ा रिसर्च कंपटीशन होता है यूनिवर्सिटी लेवल में। हमारे बच्चे जोनल लेवल में टॉपर्स हैं, ये जो देख रहे हैं आप, ये हमारे टॉपर्स हैं जोनल लेवल, रिसर्च कंपटीशन करते हैं एट अ हायर लेवल ऑफ एकेडमिक एंडिवर, हायर लेवल होता है ये। बट ये ट्रेनिंग कौन करता है? माई डियर फैकल्टीज हु आर हियर, ओके। So half of the faculties are not there, but my faculties do the training for all of them. Maya madam is here, so you can see a photograph also there. और हम intercollegiate में जब research competition होता है, we are toppers, no doubt about it. We are toppers in most of the intercollegiate events, research competition. Not only this, हमारे पास बहुत सारे जब experts आते हैं, foreigners आते हैं, तो हम उनको एक session भी रखते हैं बच्चे के लिए। तो हमने अभी रिसेंटली सेशन रखा था ऑन एनवायरनमेंट बाय दीज पीपल दोज हु कम। नॉट ओनली दिस, अब वोटिंग है, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल बी, दोज हु आर अबव 18, द पेरेंट्स, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, डू नॉट मिस May 20th, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमने क्या किया, जो रजिस्ट्रेशन हमने सेशंस रखा, जो बच्चे 18 ईयर्स कंप्लीट किए हैं उनके लिए हमने रजिस्ट्रेशन काउंटर खोला था 2 साल, अलॉन्ग विद द तहसीलदार ऑफिस। सो दे वर सो हैप्पी। एक बार नहीं, उन्होंने दूसरी बार भी हमारे कॉलेज में कैंपस रख के इतने सारे बच्चे अभी हमारे वोटर्स आईडी उन्होंने लिया है, रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, और वो ज़रूर वोट करेंगे। हम यही नहीं, वी बिलीव इन गिविंग बैक टू द सोसाइटी। तो हम दूसरे जो दूसरे अडॉप्टेड विलेज है पालघर में, वहाँ हमको पता चला कि बच्चे के पास शूज़ नहीं है पहनने के लिए, तो 367 जो शूज़ है वो हमारे बच्चे ने कंट्रीब्यूट करके, हमारे स्टाफ ने कंट्रीब्यूट करके, हमारे जो वेल विशर्स हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट करके हम ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, बच्चे को शूज़ डिस्ट्रीब्यूट, बस अभी 2-3 महीना पहला। तो हम वो भी करते हैं, जहाँ एक सेंसिटाइजेशन होता है कि आई मी माई सेल्फ नहीं है, ये एजुकेशन में मेरा नहीं होता है, इट इज़ आवर, ओके। ये जो सेंसिटाइजेशन है वो कॉलेज में होता है, रिसर्च में तो है ही, हम एकेडमिक्स में है ही, हम स्पोर्ट्स में भी पीछे नहीं है। हमारे जो बच्चे हैं वो नेशनल लेवल विनर्स है। कराटे में ये विनर है हमारे निखिल, हु इज़ इन बीकॉम। ये जो है बच्चा, उसको इंटर जोनल लेवल में बेस्ट फिजिक मिला है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की तरफ से। ये हमारी छोटी सी बच्ची है जो ऑल इंडिया कराटे चैंपियन है। दिस इज व्हाट इज विवेक। स्पोर्ट्स हो गया, एकेडमिक हो गया, रिसर्च हो गया, इनोवेशन हो गया, बचा क्या? कल्चरल, उसमें भी हमने टॉप किया है। ये हमारा जो बच्चा है सुजेश मेनन, वो बेस्ट बॉय जो है वो बहुत कोवेटेड अवार्ड होता है, बहुत बड़ा अवार्ड होता है। 2 बार उसको बेस्ट बॉय अवार्ड मिला है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के वाइस चांसलर के हाथ में। नॉट ओनली दिस, मॉरिशस के प्रेसिडेंट के सामने हमारे बच्चे ने परफॉर्म किया है मॉरिशस जाके। हम इनकरेज करते हैं, हमारे मैनेजमेंट इनकरेज करते हैं कि अगर बच्चा अच्छा है तो वो भी थोड़ा सा स्पॉन्सर करते हैं ताकि ये बच्चा आगे उनको अपॉर्चुनिटी मिले। हमने सब देखा है रिपब्लिक डे परेड कहाँ होता है, दिल्ली में तो होता ही है, हमारे बच्चे वहाँ भी है। 2 साल कंटिन्यूस 26 जैन रिपब्लिक डे परेड में हमारे बच्चे ने
कल्चरल एक्टिविटीज़ में परफॉर्म किया है, और वो 6 महीना का जो प्रोसेस होता है उनमें विनर्स होके उसके बाद उन्होंने परफॉर्म किया है. सो इट्स अ वेरी 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 बिग अचीवमेंट. ये हमारा फैसिलिटीज़ है, वो तो आपको पता ही चलेगा अभी वीडियो में. लेकिन वे यू आर सिटिंग, आप जो बैठे हैं वहाँ हर रोज़ कम से कम 200-300 बच्चे को मैंने देखा है ऑन अ डेली बेसिस. ये लाइब्रेरी है हमारे पीछे, तो बहुत बड़ा बुक्स का काउंटर है हमारे पास, बहुत फैसिलिटीज़ है. एंड हमारी जो लाइब्रेरियन है बिंदु मैडम, शी एंड हर टीम डज अ ग्रेट जॉब ऑफ एनकरेजिंग पीपल टू कम टू द लाइब्रेरी टू रीड बुक्स. योगा रूम, स्किल प्लेसमेंट, आपको पता है कि 2 हमारे अभी प्लेसमेंट ड्राइव चल रहा है. जो हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स है ऑलरेडी कंपनीज नीचे आई है, तो आप अगर रूम नंबर 11 और 12 में जाएंगे तो 3 दिन से हमारा प्लेसमेंट ड्राइव चल रहा है. तो जो फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट्स है वो कंपनीज को हम बुला रहे हैं और उनका प्लेसमेंट अभी इंटरव्यू वगैरह स्टार्ट हुआ है, वो चालू है. अगर देखना चाहते हैं तो आप पीप कर सकते हैं रूम नंबर 11-12 में, लेकिन ये 3 साल के बाद TY में. अब ये हमारी बच्ची है, मैं हमेशा इसको एक मॉडल के तरफ यूज़ करती हूँ बिकॉज ये हमारे लिए इंस्पिरेशन है. ये हमारी BCom की बच्ची थी, वेरी क्वाइट बच्ची थी, BCom की बच्ची. आज वो क्या है, मेजर है आर्मी में. दिस इज व्हाट विवेक कॉलेज प्रोड्यूसेस. ये तो वन ऑफ द एग्जाम्पल है, वन ऑफ द मेनी एग्जाम्पल. आपके सामने डॉक्टर नारायण अय्यर थे. ऐसे कई सारे हमारे एलुमनाई हैं जो कंपनी को लीड करते हैं. They are the president, they are the vice president, and the CEO of the company, they are the CFO of the company. They head, जहाँ भी जाते हैं Vivians lead it. So that is what we produce. So, हाँ, हमारे बहुत सारे दिव्यांगजन बच्चे हैं, उनके लिए भी हम फैसिलिटीज़ देते हैं. बहुत सारे दिव्यांगजन बच्चे हैं और वो भी बहुत अच्छा करते हैं. आफ्टर 3rd ईयर मुझे अभी भी पता है कि मेरा एक स्टूडेंट है जो दिव्यांगजन है, वो अब शेयर मार्केट में ही इज़ डूइंग सो वेल. सो आई एम वेरी हैप्पी. उसने किया था बैचलर इन फाइनेंशियल मार्केट. सो टेक अप समथिंग विच यू लाइक, नॉट वॉट योर फ्रेंड. बाकी के सब जो आपको अच्छा लगता है, जो आपकी एप्टीट्यूड है, वो लीजिए. और हमारे गाइडेंस के लिए अगर आपको और गाइडेंस चाहिए 44, 42, 43, 44 नंबर में, अगर आपको और डिटेल में चाहिए कि क्या प्रोग्राम है, जो हमने प्रोग्राम यहाँ लिखा हुआ है, आपको अगर चाहिए तो यू कैन टॉक टू द टीचर्स. टीचर्स विल बी देयर टू हेल्प यू. ओके, BCom के बारे में या क्या स्कोप है, क्या लेना चाहिए, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मुझे पता नहीं कि कौन सा प्रोग्राम करना है, वी आर देयर टू गाइड यू. कुछ भी चीज़ हो, अगर आपको अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, वी विल ट्राई टू हेल्प यू. ऐसा नहीं है कि मेरे कॉलेज में नहीं है तो मैं आपको हेल्प नहीं करूँगी, सॉरी, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है हमारा. इफ़ यू फील कि आपको NEP के बारे में और कुछ चाहिए, इफ़ यू फील कि मुझे और करियर गाइडेंस चाहिए, वी विल डायरेक्ट यू. हो सकता है कि हम इफ़ पॉसिबल वी कैन हैव अ एप्टीट्यूड टेस्टिंग ऑल्सो कंडक्टेड. आपको अगर आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट करना है तो आप हमें बता सकते हैं. दैट ऑफकोर्स वी विल लेट यू नो कि व्हेन यू कैन कम. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन वी कैन थिंक अबाउट इट. So, looking forward, so this is something which we believe. मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चे, we believe in what Swami Vivekananda once said. Arise, awake, and stop not till your goal is achieved. You are very young, so I want all of you to take proper, informed decision, not just decision. What I said, informed decision. I'm sure today's morning session which you have come with us, I'm sure all of you would have benefited with this session. Yes or no? Have you got something about it? Okay. So we look forward, thank you very much. A very humble thanks to all of you. And we continue our journey towards excellence. And we look forward, if you are interested, to join our institution. And we will be very happy to help you in building up your career. Thank you very much. God bless each one of you. Thank you, Principal Madam, for such a beautiful eye-opener what is NEP about.
because students were having a little dilemma what NEP is. You have so simplified and you have made it so simple for them, and they have really, I think, got what NEP is all about. And as Madam said, that we are always there at Vivek College. Whenever you have any doubt about what further courses to take or what NEP is about, we are always there here to guide you. आप मुझे लगता है आप सभी लोग यहाँ जो आए हुए हैं वो गोरेगांव में ही रहने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, तो हमारा कॉलेज आपके लिए 24/7 ओपन है. आप कभी भी आ सकते हैं. फर्स्ट फ्लोर पे हमारा स्टाफ रूम है, ऑफिस है. आप कभी भी आके ऑफिस में रिक्वेस्ट दे सकते हैं कि हमको कुछ जानना है. प्रिंसिपल मैडम रहेगी, कोई ना कोई तो स्टाफ से रहेगा, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, स्पेशली बिफोर यू टेक एडमिशन्स एंड इवन ड्यूरिंग योर एडमिशन प्रोसेस. सो यू आर मोस्ट वेलकम टू विवेक कॉलेज. और हम विवेक कॉलेज में हमारा ये मानना है कि एक बार जो विवेक कॉलेज में आता है वो विवेक कॉलेज से जुड़ जाता है. सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू यू कि आप ज़रूर विवेक कॉलेज आएंगे. नॉट नेसेसरली टू टेक एडमिशन ईयर. इफ़ यू कम ईयर टू टेक एडमिशन, वी आर मोस्ट हैप्पी. We are waiting here with open arms to take you with us, okay? But अगर आपको कुछ डाउट भी पूछने को आने का है तो भी आप विवेक कॉलेज आ सकते हैं. So Principal Madam, thank you so much for this elaborate discussion and also giving an insight about what Vivek College is all about. And also thank you Richa Madam. And Richa Madam, I request you to take it forward. अगर किसी के individual question answers है तो एक आप 5-10 मिनट उनको solve कर सकते हैं. हाँ, अच्छा, after this video, ma'am, please take up. Yeah, it's a small video. Please have a look. Too many days in the darkness, without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, darling, you were meant to survive. Namaskar. Welcome to Vivek College of Commerce, an institution which acts like a beacon for providing holistic development since 1986. Spend less time in your head. With every star, we are born again. Open your heart. Spend less time in your head.
गुड ट्यूटर जिसने बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया है अपने आप को, आइदर इट्स सब कुछ ऊपर से चला गया. सो यू कैन जस्ट टेल मी so that I can be more comfortable in my next workshop. समझा या ऊपर से गया? और से थैंक यू. इतना समझा कि कोई क्वेश्चंस ही नहीं है. Is it? Okay, anyways, questions है तो I'm there. I hope all of you got that, a small card from my person. You can obviously not call. Please don't call me. I'm not available on calls. Drop a message. I'll reply you back whenever I'm free. I'll surely reply. 99.9% I do reply to all the people. Over WhatsApp or over messages, not over calls, please. So it's my office number. You can always do. It's in my hands. तो आपका कोई भी query you can go. Psychometric test जिस किसी को भी लेनी है, it's there. We have an offer till 30th April. Anyone who wish कि मुझे confusion है नहीं है whatever, or even want to explore their options, please connect. It's not always necessary कि आपको थाने आना पड़े. Everything is lined up, online, offline हो सकता है. I work with the convenience of my students, not with mine. So anyways, जो भी possible होगा, we can do it. So questions, I'm still waiting. If you don't have, we can surely wind up. One more thing, अगर सच में session अच्छा लगा है, तो Ronit, my, मेरा office का staff है, he'll be taking a few feedbacks from you, which ultimately will help me. From teachers, from students, from parents. जो voluntarily आना चाहते हैं, they are most welcome. Otherwise, वो एक दो को पकड़ लेगा कहीं से भी और पूछ लेगा. So please cooperate with him. I'm looking for, I'll surely look into your feedbacks as well, one by one. जितने ज़्यादा होंगे उतना मुझे motivation मिलेगा. So it's always, ऐसा नहीं है कि कितने दोगे, एक और चाहिए. Got it? Please help him with this process. Thank you. Thank you so much. No, it's not a sheet. He'll directly ask question and shoot. Okay. He'll ask questions and shoot. That's it. 2 minutes, think you 1 can minute, start. anything. Come, you can Ron. start. पहले parents से ले पूछ लेना. You can do and go and take it. Start taking. Yes.